Hi everyone and welcome back to the channel. Today in this video we are going to continue our synopsis, that is for oral pathology. So this video is very important for all those who are just preparing for your MDS exams. Along with this, it is also important for third year students as well as fourth year students because this gonna come in your syllabus. So yeah, either you are doing your theory paper or you are doing your MCQ revision, this gonna make a difference. So let's start with the synopsis, and this is about your syndromes. There are a number of syndromes and their important features. So all these syndromes today that I'm going to discuss in this video are developmental syndromes, or you can say developmental disturbances. So it is highly important for third year students because it is really gonna important for your papers because it's gonna come. Okay, so these are some developmental disturbances, and we are just gonna do developmental disturbances in this video. It's going to be short video, so that you can summarize your things and get a better learning. Okay, along with this I have made my own personal notes also, so that it will be easy for you to remember the things, because I have made some funny mnemonics also there, so that it can retain in your mind for a longer period of time. Okay, so first of all, let us see to the basic terminology that is given in the book. Okay, so let us start with the syndromes. First is your Peri-Romberg syndrome. Peri-Romberg syndrome is associated with facial hemiatrophy. So what is facial hemiatrophy? That is, facial means face, hemi means half, atrophy means atrophy. So half face atrophy occurs in Peri-Romberg syndrome. So if you find someone and you just have seen like half of the face is not working and there is atrophy of half of the face, then you can say that yeah, it can be a Peri-Romberg syndrome, but you should keep in your mind that yeah, it's a developmental disorder. Okay, so after that, second one is your Vanderwood syndrome. Now Vanderwood syndrome is related with your pits of lower lip and cleft palate. देयर आर पिट्स. पिट मतलब खड्डे. आपके लोअर जो भी बंदा है उसके लोअर लिप में खड्डे हो सकते हैं, प्लस क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है. तो जब आपको ये दोनों चीजें साथ मिलती हैं, इफ यू फाइंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स, यू कैन say that yeah, it can be a Vanderwood syndrome. Asher syndrome. Asher syndrome. In Asher syndrome, we have three things. We have acquired double lip. Acquired double lip is like what? If you're gonna see the lips of a person and अगर आप उसका मुंह खुलवा के देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके अपर लिप के अंदर एक लिप जैसा कुछ है. ठीक है, उसका जो मैक्सिला होता है वहां पे आप कुछ ऐसा सा प्रोजेक्शन सा दिखाई देता है कि हाँ, इट्स लाइक अ लिप्स लाइक स्ट्रक्चर. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डबल लिप. प्लस बंदे में यहाँ पे ब्लेफेरोचिलेसिस दिखता है. ब्लेफेरोचिलेसिस इज व्हाट? दैट इज अपर आईलिड एनलार्जमेंट. जो आंख की अपर वाली आईलिड होती है उसकी में एडिमा हो जाता है. दैट इज ब्लेफेरोचिलेसिस. प्लस नॉन टॉक्सिक थायराइड एनलार्जमेंट. बंदे को थायराइड एनलार्जमेंट होती है और वो थायराइड एनलार्जमेंट नॉन टॉक्सिक वाली होती है. तो तीन चीजें हमें दिखती हैं एशर सिंड्रोम में: acquired double lip, blepharochilasis, and non-toxic thyroid enlargement. Next, we have orofacial digital syndrome. As the name is suggesting, orofacial, face involvement plus digital involvement. यहाँ पे अगर हम देखें फीचर्स, मेनली जो डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग रेट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उसमें हमें क्लेफ्ट टंग दिखती है. टंग में क्लेफ्ट दिखता है, प्लस क्लेफ्टिंग ऑफ मैंडिबुलर एल्वियोलर प्रोसेस होती है. जो मैंडिबुलर एल्वियोलर प्रोसेस होती है, जो हड्डी होती है मैंडिबल में, उसमें भी क्लेफ्ट दिखाई देते हैं. ऑब्वियसली आप एक्सरे करेंगे तभी आपको पता चलेगा. सो दैट इज ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम. नेक्स्ट इज मीडियन क्लेफ्ट फेस सिंड्रोम. एज द नेम सजेस्टिंग, मीडियन लाइक फ्रॉम द मिड, क्लेफ्ट फेस सिंड्रोम. तो यहाँ पे हमारे पास चार चीजें देखने को मिलती हैं. वी गोना सी हाइपरटेलोरिज्म. डू यू नो व्हाट हाइपरटेलोरिज्म इज? व्हाट इज हाइपरटेलोरिज्म? Maybe I can show you. Yeah, this is called as hypertelorism. Can you see this? When widening between the two eyes
increases, that proper structure, that proper face structure is called as hypertelorism. You can see normal eye size and in between the distance between these two eyes, and it keeps on increasing. So that shape of the face you can recognize by seeing the patient. Yeah, like yes, the patient is having hypertelorism. उनकी जो नॉर्मल आंखों के बीच का डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है. दैट इज योर हाइपरटेलोरिज्म. सो दिस इज हाइपरटेलोरिज्म. ओके, तो एक तो हमें ये दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है, मीडियन क्लेफ्ट फेस सिंड्रोम में हमें हाइपरटेलोरिज्म दिखाई देता है. दूसरा हमें दिखता है मीडियन क्लेफ्ट ऑफ प्री मैक्सिला. जब हमारा पैलेट बनता है, पैलेट फॉर्मेशन जो होता है हमारा, उसमें हमारी कुछ प्रोसेसेस की फ्यूजन होती है. उसमें से एक प्री मैक्सिला एक प्रोसेस होती है. तो उसमें जब क्लेफ्ट हो, मीडियन क्लेफ्ट ऑफ प्री मैक्सिला हो जाए, दैट इज सीन इन मीडियन क्लेफ्ट फेस सिंड्रोम. प्लस क्लेफ्ट पैलेट दिखाई देगा, ऑब्वियसली जब प्री मैक्सिला इन्वॉल्व है तो क्लेफ्ट पैलेट दिखाई देगा. प्लस क्रेनियम बाइफिडम, क्रेनियम बाइफिडम ऑकल्टम दिखाई देगा. व्हाट इज क्रेनियम बाइफिडम ऑकल्टम? दिस इज क्रेनियम बाइफिडम ऑकल्टम. यू कैन सी दिस. आप एक्सरेज देख सकते हैं. जब आप बंदे का एक्सरे करवाएंगे, स्कल का एक्सरे करवाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह का स्पेस दिखाई देगा स्कल के अंदर. यू कैन सी, यू कैन अप्रिशिएट दिस फर्स्ट पिक्चर, ए पिक्चर. आपको इस तरह से स्पेस दिखाई देगा. दैट इज योर क्रेनियम बाइफिडम ऑकल्टम. इस तरीके से अगर आप क्लिनिकली देखें, पेशेंट को ऑब्जर्व करें, तो पेशेंट जो भी है उसमें स्वेलिंग दिखाई देगी. आइदर कैन बी ऑन द बैक साइड ऑफ योर हेड or it can be in the anterior region. So this is cranium bifidum occultum, जो हमें median cleft face syndrome में दिखाई देता है. तो चार चीजें दिखती हैं. हाइपरटेलोरिज्म दिखता है, आंखों के बीच का जो नॉर्मल स्पेस होता है वो बढ़ जाता है. क्लेफ्ट दिखता है प्री मैक्सिला में, पैलेट में क्लेफ्ट दिखता है, और क्रेनियम बाइफिडम ऑकल्टम स्वेलिंग दिखाई देती है हेड रीजन में. Next is Mishra's syndrome. So what is Mishra's syndrome? I also told you in my previous videos. Mishra's syndrome क्या होता है? This is related to your lip, that is upper lip. Upper lip involvement होती है उसमें. cheilitis granulomatosa कहते हैं हम उसको. cheilitis granulomatosa is a term which is used for upper lip. So this is Mishra's syndrome. Next is Michelson-Rosenthal syndrome. Now Michelson-Rosenthal syndrome is just like Mishra syndrome, बस इसमें दो चीजें और होती हैं. cheilitis granulomatosa के साथ साथ facial paralysis हो जाता है, प्लस scrotal tongue होती है. Do you know what scrotal tongue is? Scrotal tongue look like this. It look like this. आपकी जो टंग होगी उसमें इस तरह से काफी सारे गैप और फिशर्स ऐसे आते हैं, तो फटी हुई लगती है बीच में से ऐसे टंग. दैट इज scrotal tongue. ठीक है, तो हमें तीन चीजें दिखाई देंगी Michelson-Rosenthal syndrome में. इट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज cheilitis granulomatosa, फेशियल पैरालिसिस एंड स्क्रॉटल टंग. बंदे का फेस का पैरालिसिस हो जाएगा, उसकी टंग में बीच में क्लेफ्ट दिखाई देगा, और उसका जो अपर लिप होगा उसमें cheilitis granulomatosa दिखेगा. नेक्स्ट इज Peutz-Jeghers syndrome. Peutz-Jeghers syndrome इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसमें हमारे पास दो चीजें मेनली दिखाई देती हैं. इसमें कोई ओरल इन्वॉल्वमेंट खास नहीं दिखती, बस पिगमेंट्स दिखते हैं ओरल कैविटी में. बाकी ये बेसिकली पूरी बॉडी से रिलेटेड है. इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में पॉलिप बन जाता है, तो मल्टीपल इंटेस्टाइनल पॉलिपोसिस हो जाता है, प्लस पिगमेंटेशन दिखाई देती है. पिगमेंट सब कहाँ कहाँ दिखेंगे? फेस पे दिख सकते हैं पिगमेंट्स, ओरल कैविटी में दिख सकते हैं, और हैंड्स में दिख सकते हैं. तो अगर आप ओरल कैविटी अगर आप चेक करेंगे, आपको कुछ ऐसे पिगमेंट्स दिखाई देंगे. अगर आप फेस भी चेक करें, फिर आपके उसके हैंड्स वगैरह चेक करें, आपको पिगमेंट्स दिख रहे हैं अगर, तो इट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ Peutz-Jeghers syndrome. हालांकि इसके और भी फीचर्स होते हैं, बट मेन फीचर्स यही होते हैं. नेक्स्ट इज Beckwith hypoglycemic syndrome और Beckwith Woodman syndrome. सो Beckwith हाइपोग्लाइसेमिक भी बोल सकते हैं आप इसे, और वुडमैन भी बोल सकते हैं. हाइपोग्लाइसेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है. नियोनेटल क्या होता है? नियोनेट्स क्या होते हैं? पहली बात, नियोनेट उस बच्चे को कहते हैं जो भी 1 महीने का होता है, उसको हम नियोनेट बोलते हैं. उस बच्चे में शुगर लेवल कम मिलता है अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो. सो दैट इज नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया. प्लस अगर आप उसकी टंग चेक करें तो उसका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, दैट इज मैक्रोग्लॉसिया. प्लस उसमें माइक्रोसेफेली होती है बच्चे में. व्हाट इज माइक्रोसेफेली?
जो हेड साइज होता है वो नॉर्मल साइज से कम दिखाई देता है. कैन यू अप्रिशिएट दिस? ऐसा लगता है कि दिमाग नहीं है, लाइक सर नहीं बना बच्चे का. तो माइक्रोसेफेली दिखती है. प्लस इसमें साथ में और क्या दिखता है, विसरल, फीटल विसरल मेगालो होती है. फीटल मतलब जो बच्चा है उसमें जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें मिगैली मतलब उनका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वगैरह दिखाई देता है. उनके ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं करते. तो 4 चीजें दिखती हैं. टंग की साइज बड़ा दिखता है, नियोनेट्स में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, माइक्रोसेफेली हेड का साइज कम होता है, और फीटल विस्ट्रोमेगाली होती है. लाइक स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये जो सारी चीजें होती हैं ये ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते. तो दिस इज बैकवर्ड वुडमैन सिंड्रोम और बैकवर्ड हाइपोग्लाइसीमिक सिंड्रोम. नेक्स्ट वी हैव रूबिन्स्टन टाइबे सिंड्रोम. रूबिन्स्टन टाइबे सिंड्रोम में हमारे पास 5 चीजें दिखाई देती हैं और ये सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी नॉट जस्ट ओरल रिलेटेड नहीं होती, काफी चीजें होती हैं. पहली जो ओरल इन्वॉल्वमेंट इसमें हमें दिखती है वो होती है टेलन कस्प. टेलन कस्प आपको पता ही है, दांत के ऊपर एक छोटी सी कस्प लाइक चीज दिखाई देती है, दैट इज टेलन कस्प. प्लस इसमें साथ में डेवलपमेंटल रिटार्डेशन दिखती है. जो डेवलपमेंटल रिटार्डेशन जैसे कि जो बिहेवियर होता है, ऐसे लगता है छोटे बच्चे का बड़ा भी होता जाए तो डेवलपमेंट नहीं हो पाती अच्छे से. प्लस ब्रॉड थम्स होते हैं हाथ के, और ग्रेट टोज होते हैं, पैरों के टोज बहुत बड़े होते हैं. प्लस इसमें डिलेड और इनकम्प्लीट डेसेंट ऑफ टेस्टीज होते हैं. जो टेस्टीज का एक प्रॉपर टाइम के बाद टेस्टीज का डेसेंट होता है वो नहीं हो पाता. सो दैट इज योर रूबिन्स्टन टाइबे सिंड्रोम. Rubinstein Tybee syndrome, that is tail cusp, developmental retardation, broad thumbs, great toes and delayed or incomplete descent of testes. Klinefelter syndrome हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, that is 21 chromosome trisomy. Sorry, that is Down syndrome. Sorry, Klinefelter syndrome बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं इसमें क्या होता है कि मेल्स में दिखाई देता है ये, और उसमें जैसे नॉर्मल XY जो क्रोमोसोम होते हैं मेल्स में उसमें डबल XY हो जाता है. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं. और इसके अंदर हमें 2 ही चीजें दिखाई देती हैं, टोरोडोंटिज्म और XXY जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो टोरोडोंटिज्म क्या होता है, जो अगर आप एक्सरे लें दांतों का तो आपको IUP लें तो आपको दिखेगा कि जो पल्प चैम्बर होता है वो काफी बड़ा होता है. इट इज वेरी ब्रॉड एंड लार्ज. दैट इज टोरोडोंटिज्म. गार्डनर सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है. गार्डनर सिंड्रोम में भी हमारे पास यहाँ पे 4 चीजें दिखाई देती हैं. इसमें भी पॉलिप बनते हैं, मल्टीपल पॉलिप, बट यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है. पहले जो हमने पॉलिप पढ़े थे वो प्यूट जगर में पढ़े थे, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहे थे. यहाँ पे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में पॉलिप्स बनते हैं. प्लस इसमें ऑस्टियोमास ऑफ बोन बनता है. डू यू नो व्हाट ऑस्टियोमा इज? ऑस्टियोमा इज जस्ट लाइक एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन एट सम पार्ट. कैन यू अप्रिशिएट दिस? ऑस्टियोमास ऑफ बोन. Osteomas are benign outgrowths of bone found mainly on the bones of skull. Like जरूरी नहीं है स्कल पे हो, बट कहीं पे भी हो सकता है. लेकिन इस तरह से जो आउटग्रोथ दिखती है दैट इज ऑस्टियोमा. ऑस्टियोमा इज बेसिकली एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन. एस्टियोमा दिखाई देता है, साथ में मल्टीपल सिबेशियस सिस्ट दिखाई देते हैं सर के ऊपर. अगर आप फील करके देखेंगे तो ऐसे सिस्ट फॉर्मेशन होगी बहुत सारी. प्लस सिस्ट के साथ साथ यहाँ पे सुपरनूमरी टीथ होंगे, इम्पैक्टेड टीथ होंगे. अगर आप नीचे ओरल कैविटी का अगर आप एक्सरे लेंगे तब आपको दिखेगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर सीन इन गार्डनर सिंड्रोम, दैट इज पॉलिप्स, ऑस्टियोमास, sebaceous cyst and supernumerary teeth. Then we have Ladd syndrome. Ladd syndrome, as the name is suggesting Ladd, so we have make a mnemonic LADD, Ladd. First of all, there is lacrimal apparatus. Lacrimal gland apparatus involvement होती है, या तो lacrimal sac की inflammation हो जाती है या फिर उसका aplasia हो जाता है. Aplasia का मतलब क्या होता है कि जो organ है वो बचपन से ही या तो बना ही नहीं है या इनकम्प्लीट है. ठीक है. ऑरिकल डिफॉर्म्ड हो जाते हैं with ear having a cup like appearance. Auricles deform और cup like appearance होती है ईयर की. डेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ पे पेग शेप टीथ दिखाई देते हैं, हाइपोडोंशिया दिखाई देता है, टूथ मिसिंग होते हैं काफी सारे 30%, प्लस इनामल हाइपोप्लेजिया होता है. और हाइपोडोंशिया इनामल हाइपोप्लेजिया. एंड देयर इज डिजिटल इन्वॉल्वमेंट, लाइक डेविएशन ऑफ फिंगर्स हो जाती हैं. आइदर फिंगर्स डेविएट ऑन द मीडियल साइड, ऑन द लेटरल साइड, जिसको हम क्लिनोडैक्टिली बोलते हैं, क्लिनोडैक्टिली. सो दिस इज अबाउट लैड सिंड्रोम.
And with this we have completed our developmental disturbances syndromes. Yeah, I've also made some mnemonics here, so you can just take a screenshot. Or yeah, like Perry-Romberg syndrome, I've made like a person named Perry has gone to Rome, and there he got a atrophy of his face, half of face, so you can learn it better. Next, Wanderwort syndrome, like जैसे हम वॉन्डर करते हैं, घूमते हैं, तो घूमते घूमते अगर कोई गिर गया, उसका लिप लगा जमीन पर और उसके लिप पे खड्डे पड़ गए, प्लस पैलेट में क्लेफ्ट, सो यू कैन ऑल्सो learn with this. Asher syndrome is also the Asher, you can relate with Aishwarya Rai, like Aishwarya has made a has done a surgery, and in the surgery उसने अपने double lip surgery and eye surgery and thyroid surgery, like thyroid treatment and all. You can, yeah, I know it's funny, but yeah, you can learn with this. Oral facial digital syndrome, no mnemonic. Yeah, I've made some diagrams, you can appreciate them. Michael Rosen, so this is all normal. And then we have this, like Peutz syndrome, intestinal involvement, pigments of face, oral cavity, hands. Beckwith-Wildren syndrome, there can be macroglossia, neonate hypoglycemia, microcephaly, fetal visceral megaly. Rubinstein-Tybee syndrome, tail and cusp, developmental retardation, broad thumb, great toes, delayed descent of testes, Klinefelter, taurodontism. You can see the picture of taurodontism and XSY genetic constitution. Gardner syndrome, there is multiple polyps of large intestine, osteomas of bones, sebaceous cysts, and supernumerary impacted teeth, and Ladd syndrome, that is lacrimal and preterist involvement, auricle deformed, dental involvement, and distal deformities. Yeah. So with this, I've completed developmental disorders, and I hope you like the video. Yeah. So for more content, do subscribe to my channel, and thank you.